CSAT, Civil Services Aptitude Test. This exam has become a nightmare, or you can say a bone of contention for a lot of UPSC aspirants, especially the recently concluded 2023 exam of CSAT. It has created a lot of fear and anxiety in the minds of the aspirants. But this anxiety and fear also comes because we are not very familiar with the examination. ठीक है, जब हम एग्जाम से फेमिलियर नहीं होते हैं, वी आर नॉट फेमिलियर विद द पैटर्न, विद द सिलेबस, so then also fear or anxiety is increased. So it's very important that first of all we understand what is CSAT, what is the syllabus, what has been the pattern over the years, and then when we practice more and more, because CSAT is more about practice, we have to learn certain concepts, but it's more about practice. So when we delve deeper into this, into the preparation of CSAT, then gradually our fear will also reduce. So welcome guys to our channel UPSC by Anuj Jindal. My name is Chetan, and if I give a brief about myself, so I have done my bachelor's and master's in commerce from Delhi University. I have done various competitive examinations like CAT examination, SSC CGL, Bank PO, etc. I also worked as an assistant audit officer with CAG for 1.5 years, but then I came back to pursue my passion for teaching. So even before I start with what is CSAT and its details, it's important that we understand the broad structure of UPSC civil service examination. So it's comprised of preliminary examinations comprising of two papers, GS1 and GS2. Then you have mains examination, which comprises of paper A, paper B, which are language papers, and then essay paper, then GS4 GS papers, and two optional papers. And then we have a personality test, that is interview. So the CSAT paper is also called GS2 paper of prelims, or rather you can say the general studies GS2 paper of prelims is also called CSAT. Okay, so now let us understand about CSAT a little bit more. Before that, I would like to discuss in brief the history of CSAT. So CSAT as a separate paper was introduced in the year 2011. Before 2011, CSAT was not a separate paper. एक कॉमन पेपर होता था, उसी में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते थे. बट 2011 से CSAT का पेपर एक सेपरेट पेपर कंडक्ट होने लगा. बट फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स CSAT बिकेम क्वालिफाइंग. तो 2015 से पहले CSAT के मार्क्स मेरिट में काउंट होते थे, बट 2015 onwards, based on representations by many candidates and based on the recommendations of committee, 2015 से CSAT को क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है. ओके, so योर मार्क्स आर नॉट काउंटेड, योर CSAT मार्क्स आर नॉट काउंटेड कि आपका सिलेक्शन मेंस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इट्स ओनली दैट यू नीड टू स्कोर बेयर मिनिमम मार्क्स. तो CSAT का जो एग्जाम है, इट इज ऑफ 200 मार्क्स एंड यू ओनली नीड टू सिक्योर 33%, दैट इज 67 मार्क्स. तो 200 में से आपको सिर्फ 67 मार्क्स स्कोर करने होते हैं टू क्लियर दिस एग्जाम. ऑल्दो आजकल वो इतना इजी नहीं है काफी कैंडिडेट्स के लिए, बिकॉज सर्टेनली द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन हैज बीन रेज्ड, बट इट्स ऑल्सो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट वी आर अंडर प्रिपेयर्ड. हम प्रॉपर प्रिपरेशन भी नहीं करते हैं. सो इन टोटल देयर आर 80 क्वेश्चंस. ओके, 200 marks, which means one question carries 2.5 marks, and there is 1/3 negative marking also. That is also an area of concern, because negative marking की वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम क्लियर नहीं होता है. ओके, सो इट इज -0.83, 1/3, राइट. एंड द एग्जामिनेशन इज ऑफ 2 hours. सो यस, टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है हमारे पास. वी हैव टू बी फास्टर ऑल्सो, बिकॉज वी हैव टू डू 80 क्वेश्चंस इन 120 minutes. एंड इफ आई टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन, जो एक ट्रेंड देखा गया है इन दिस 80 क्वेश्चंस, तो बेसिकली अभी मैं सिलेबस भी डिस्कस करूंगा. सो आई क्लासिफाई द पेपर इनटू 3 पार्ट्स, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग. सो इंग्लिश से, और यू कैन से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आप उसको बोल सकते हो, तो वहां से 25 to 35 ये रेंज रहती है इंग्लिश की जनरली, एंड द रेस्ट 45 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग. और उसमें भी मैथ्स का प्रपोर्शन ज्यादा रहता है रिसेंटली अगर आप देखोगे. सो उस 45 में भी मेजर प्रोपोर्शन मैथ्स का रहता है. सो 25, अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन तो मैथ्स के रहेंगे, बाकी 15 क्वेश्चन के करीब आपके रीजनिंग के रहते हैं. तो मैथ्स का प्रोपोर्शन अच्छा रहता है, और 23 के पेपर में भी मैथ्स का प्रोपोर्शन काफी अच्छा था.
ठीक है, तो इस तरीके से एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपका रहता है ऑफ द सीसेट एग्जामिनेशन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ इट, तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन, जो यूपीएससी अपनी नोटिफिकेशन में सिलेबस देता है, दैट इज वेरी लिमिटेड. बिल्कुल भी डिटेल में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सिलेबस की. तो जो टॉपिक्स, तो सिलेबस हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन पास्ट ईयर पेपर्स. तो सीसेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पास्ट ईयर पेपर्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल. ऑल्दो 2023 का पेपर देके बहुत से सारे लोगों को लगा कि एकदम पैटर्न चेंज हो गया है, बट ऐसा नहीं है. सी, दे माइट हैव ट्विस्टेड द क्वेश्चंस, बट द कॉन्सेप्ट्स रिमेन द सेम. ठीक है, तो पास्ट ईयर्स का रेलेवेंस है, बिल्कुल है. तो हम ये नहीं बोल सकते कि पास्ट ईयर्स इररेलेवेंट है. डेफिनेटली पास्ट ईयर्स हैव अ रेलेवेंस. पास्ट ईयर से काफी इंफॉर्मेशन मिलती है. सो यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग पास्ट ईयर पेपर्स. इजीली अवेलेबल है ऑन द यूपीएससी वेबसाइट इटसेल्फ. तो जो सिलेबस डिफाइन करता है यूपीएससी, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1. तो ये 6 पॉइंटर्स दिए हैं यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में, जो हर साल आती है. इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी मेंशन है यहाँ पे. तो इन जो टॉपिक्स गिवन है, मैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं. सबसे पहले इंग्लिश, जिसमें बेसिकली इंग्लिश में वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही पूछते हैं. सो कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दीज ऑल 3 आर पार्ट ऑफ इंग्लिश. ये सब इंग्लिश का पार्ट है. सो आई एम डूइंग दिस क्लासिफिकेशन ताकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, बिकॉज बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन होती है तो हमारे लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. बट आई हैव क्लासिफाइड द एंटायर सिलेबस इनटू 3 कैटेगरीज. तो इंग्लिश में क्या हो गया आपका? कॉम्प्रीहेंशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. तो बेसिकली इंग्लिश में क्या होता है? दे गिव डिफरेंट आरसीज, पैराग्राफ्स देते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, एंड दोज क्वेश्चंस आर नॉट द कन्वेंशनल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन जो हम लोग स्कूल में करते थे या हमने अदर एग्जाम में किया होगा. यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग यूज होती है. तो इंग्लिश इज मोर लाइक क्रिटिकल रीजनिंग. नाम इंग्लिश है बट इट्स मोर लाइक क्रिटिकल रीजनिंग, बिकॉज क्वेश्चंस कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस पैसेज, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. ठीक है, या फिर व्हाट इज द लॉजिकल इन्फरेंस, मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस. सो दीज क्वेश्चंस बिकम वेरी सब्जेक्टिव बिकॉज वी आर नॉट वेरी श्योर विच इज द राइट आंसर. यू माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस. तो थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग उसमें डेवलप करने की जरूरत होती है. सो दीज 3 आर पार्ट ऑफ दिस इंग्लिश पोर्शन. देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो भी मैं डिस्कस करूंगा. एंड देन द लास्ट वन इज मैथ्स, जिसमें आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. ऑल दीज आई क्लासिफाई अंडर मैथ्स. सो दिस इज हाउ आई bifurcate the syllabus into 3 parts for better understanding. Now I'll discuss the syllabus of all these 3 parts in a bit detail, and I will try to give you some insights based on my research. So maths की बात करते हैं अगर हम, so maths में there are around 25 to 26 topics based on past year papers. तो syllabus कोई defined नहीं है यूपीएससी का, but based on trend, based on experience, we come to find out कि भाई ये topics होते हैं, important topics होते हैं in the mathematical aptitude, right? So you have topics like number system. This is one of the most important topics if we talk about the mathematical section. इस साल मैक्सिमम क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से ही आए हैं और हर साल नंबर सिस्टम से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, अलजेब्रा. ओके, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने सबसे पहले ही लिखे हैं. सो दीज आर द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द सेंस कि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी कवर द एंटायर सिलेबस. इट्स नॉट वाइज कि हम कुछ भी छोड़कर जाएं, बिकॉज दे कैन, यूपीएससी कैन गिव मोर वेटेज टू एनी टॉपिक. वी डू नॉट नो, वो किसी भी टॉपिक को ज्यादा वेटेज दे सकते हैं. ओके, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी कवर द एंटायर सिलेबस, बट दीज आर द मोर इंपॉर्टेंट एरियाज. और ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, फ्रॉम दीज टॉपिक्स जनरली ये ट्रेंड है कि ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं. फिर उसके बाद आपके पास एरिथमेटिक के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं. ओके, एरिथमेटिक में टॉपिक्स हैं आपके जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, दीज ऑल टॉपिक्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. एरिथमेटिक के बहुत सारे टॉपिक्स हैं. एंड देन यू हैव सर्टेन अदर टॉपिक्स लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो इस साल डीआई से क्वेश्चन नहीं आया, बट दिस इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पिछले सालों में हर साल क्वेश्चंस आते थे डीआई से.
बट अभी इस साल नहीं आया, बट दैट इज इररिलेवेंट। हमें इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके चलना है। तो ये आपका एक सिलेबस है मैथ्स का, बिकॉज सीसेट का सिलेबस क्या है ये भी बहुत बड़ी क्वेरी रहती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट ब्रॉडली दिस इज द सिलेबस। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा दिस इज एग्जॉस्टिव, बट ऑलमोस्ट यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट आपका मैथ्स का सिलेबस इसमें पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बाद में कभी, जब हम इनको स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे, बट अभी एक ब्रॉड में आपको आइडिया दे रहा हूं। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तो रीजनिंग बोल सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, दिस इज हाउ दे हैव डिफाइंड। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रीजनिंग में रहते हैं, दे आर डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इन सभी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑर्डर रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, पजल से भी क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। देन क्यूब्स एंड डाइस, अल्फाबेट टेस्ट। देन एनालिटिकल एबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो एनालिटिकल एबिलिटी में आप किस किस टॉपिक को क्लासिफाई कर सकते हो? सो यू हैव अ टॉपिक कॉल्ड स्टेटमेंट कंक्लूजन, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो दीज टॉपिक्स कम अंडर योर एनालिटिकल एबिलिटी सेक्शन। देन यू हैव अदर टॉपिक्स लाइक नॉन वर्बल रीजनिंग, जहां पे फिगर गिवन होती है कोई और आपको उसके बेसिस पे चूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर इमेज, मिरर इमेज, कंप्लीटिंग द पैटर्न, दे कम अंडर नॉन वर्बल रीजनिंग। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कि आपको एक फिगर दे दी, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर, द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं एक बेसिक सा क्वेश्चन, टेल मी द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दिस फिगर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। ठीक है, यू हैव टॉपिक लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देन क्लॉक्स कैलेंडर, वेरी फेवरेट टॉपिक, यहां से भी एक ना क्वेश्चन जरूर आता है। देन एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। so दिस इज द ब्रॉड सिलेबस ऑफ योर रीजनिंग, बट क्वांट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एज कंपेयर टू रीजनिंग, दिस हैज बीन द ट्रेंड। और क्वांट थोड़ी हमको ज्यादा मुश्किल भी लगती है एज कंपेयर टू रीजनिंग, बिकॉज क्वांट में भी, मैथ्स में भी जो टॉपिक ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं हमको, दैट इज नंबर सिस्टम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक्स हमको ज्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं। So we should devote more time particularly to these two topics. And then if I talk about the English section or the comprehension section, तो यहाँ पे कोई ऐसा वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है, बट बेस्ड ऑन द पैटर्न आपको पैसेजेस गिवन होते हैं और क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेजेस आर दैट व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ओके, और व्हाट इज द corollary ऑफ द पैसेज, द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, इस तरीके के क्वेश्चंस। लॉजिकल इन्फरेंस, अजम्पशंस, ओके, क्रक्स, या फिर वो आपको आर्ग्यूमेंट कोई दे सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है कि नहीं है, इस तरीके से। द अंडरलाइंग टोन ऑफ द पैसेज, what is the implication of the passage, or they can give you certain statements and you have to choose which is the correct statement or which is the incorrect statement. Okay, then they can ask you the solution or the course of action which could be taken, or they can ask you the opinion of the author, or they can even sometimes ask you the title of the passage, what should be the title of this passage. तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश में या कॉम्प्रिहेंशन में, विच रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, सो इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश सेक्शन हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। सो दिस इज द ब्रॉड इंफॉर्मेशन, एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाह रहा था अबाउट सीसैट, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट इफ वी आर स्टडिंग दिस पेपर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, we should have a broader idea before we start preparation. So understanding the pattern, the broad idea and the syllabus, it's very important that you understand the syllabus before starting the preparation. So that was my objective. So I'll be making some other videos regarding the trend analysis of this paper, about the strategy for 2024, because 2024 का एग्जाम as you know कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज एडवांस में हो जाता है, इन द मंथ ऑफ मे ओनली कैलेंडर रिलीज हुआ था, तो 26 मई, दैट इज संडे ओनली, तो 26 मई को आपका एग्जाम है। सो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ डेज यू हैव। तो इसकी स्ट्रैटेजी पे मैं सेपरेटली बात करूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा कि हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अदर एरियाज ऑल्सो। आपको मेंस की भी तैयारी साथ में करनी है, प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 की भी तैयारी करनी है। सो आई विल मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर 2024 very soon. So I hope guys you must have liked the video. So if you have liked the video, please do hit the like button. Also I want you guys to share your feedback in the comment section regarding this video, and you can share this video also with your friends and others who are preparing for this examination. And yes, do not forget to subscribe to our channel so that you come to know about any other video which I upload on CSAT.
So thank you very much, guys. I'll take your leave now. Goodbye, take care, and Jai Hind.